So now the session is here and the recording has been started, and let's begin. The notes what I have already shared to you, जो मैंने आपको notes share किए हुए हैं, उन्हीं notes के questions को मैं आज pick up कर लेता हूँ and will make you understand कि जब आप इन questions को पढ़ेंगे या जिन units के ऊपर जाएंगे तो you would have a better impact of it. आपको problem नहीं होगी, बड़े आराम से इनको आप समझ लेंगे. तो इन्हीं सीक्वेंस के चलते हुए ये यूनिट 5 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे कंपाइल किए हैं आप लोगों के लिए. इनको समझ सकते हैं आप. जैसे व्हाट इज़ अ स्पार्सिटी लर्निंग, सबसे पहला क्वेश्चन यही हो गया कि स्पार्सिटी लर्निंग क्या है. तो आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया टू यू. यू कीप ऑन स्टडिंग ऑन दैट. आप इसकी पढ़ाई कीजिए, समझिए, और जहाँ पर आपको लगता है कि यू हैव एन डाउट, सो प्लीज़ बेटर टू आस्क मी, मेरे से पूछिए. आई कैन हेल्प यू. दिस इज व्हाट द टारगेट. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हम लोग स्पार्स की बात करेंगे. व्हाट इज़ द स्पार्सिटी लर्निंग. दिस अ वेरी फर्स्ट टाइप एंड टारगेट हियर. सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन. यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यही सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब आप पढ़ने बैठेंगे. तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन वहीं आपके क्वेश्चन एंड आंसर करके जो आपको फॉर्मेट्स दिए गए हैं, यू विल गेट ऑल दैट. आपको सारे के सारे वहाँ पर मिलेंगे. सो आई एम बिगनिंग विद इट and trying to make you understand with that. तो मैं इसके बारे में आपको पढ़ के बताता हूँ. I'll pick up the unit 5 questions here. मैं unit 5 के questions यहाँ pick करता हूँ. So first of all, what is the sparsity learning? So sparse coding is a representation learning method which aims at the finding a sparse representation of input data, also known as a sparse coding, into the form of a linear combination of basic element. वही है आपका, as well as those basic elements themselves. These elements are called atoms and they compose a dictionary. Atoms in a dictionary are not required to be orthogonal. They may be an over-complete spanning set. This setup also allows the dimensionality of a signal being represented to be higher than one of the signal being observed. The above two properties lead to the having seemingly redundant atoms that allow multiple representation of the same signal but also provide an improvement in sparsity and flexibility. One of the most important applications of the sparse dictionary learning is in the field of compressed sensing or signal recovery. In compressed sensing, a high-dimensional signal can be recovered with only a few linear measurements provided that the signal is sparse or nearly sparse. Since not all the signals satisfy the sparsity condition, it is of great importance to find a sparse representation of that signal, such as the wavelet transform or directional gradient of the rasterize matrix. Once a matrix of a high dimensional vector is transferred to a sparse space, different recovery algorithms like Bayes, Pursuit, COSA, and fast non-iterative algorithms will be used. So let us understand first of all. अब इसमें पूरा का पूरा मैटर समझने की बात है. If you go through a paragraph, it's a very simple language and very easy language. अगर एक बार आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि बेसिकली हम किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं. So taking it a little more on that, one of the key principles of a dictionary learning is that the dictionary has to be inferred from the input data. The emergence of sparse dictionary learning method was stimulated by the fact that in signal processing, one typical wants to represent the input data using a few components as possible. Before this approach, the general practice was to use predefined dictionaries, such as Fourier wavelet transform. However, in certain cases, a dictionary that is trained to fit input data can significantly improve the sparsity, which has application in data decomposition, compression, and analysis, and has been used in the field of the image denoising and classification, video and audio processing. Sparsity and over-complete dictionaries have immense application in image compression, image fusion, and imprinting. So now, if simply it is being asked, एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, कभी भी कहीं भी पूछा जाता है कि अगर स्पार्सिटी लर्निंग की बात की जाए, तो ऑब्वियस सी बात है स्पार्सिटी लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे भी होंगे स्पार्सिटी के, दैट आई कैन शो यू कि वेयर यू हैव सीन सच काइंड ऑफ अ गुड एग्जांपल्स ऑफ स्पार्सिटी. Just giving one more example here. Sparsity come into the picture when you are going to create such kind of effects कि जब आप information का एक certain part
कोई भी एक ऐसा पार्ट है इंफॉर्मेशन का जिसको कि आप स्किप कर सकते हैं, और उसके बिहाफ पर जब उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने जाएंगे तो वो इंफॉर्मेशन आप उस रिमेनिंग पार्ट से निकाल सकते हैं। जैसे आप ये एग्जांपल के तौर पर देखिए, यहाँ पर आपको ये एक डेंस मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है ना, ये कंप्लीट डेंस मैट्रिक्स है पूरा। लेकिन इस डेंस मैट्रिक्स को जब आप स्पार्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसके कुछ इंफॉर्मेशन कंटेंट को आप रिकॉर्ड कर देते हैं और मिसिंग कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ स्पार्स मैट्रिक्स, एंड द प्रोसेस ऑफ दिस इज कॉल्ड एज अ स्पार्स लर्निंग। और ये स्पार्स लर्निंग के एग्जांपल आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखे होंगे। जैसे किसी को हम केवल इतना लिखते हैं, हाउ आर। अब जैसे मैंने बोला हाउ आर, डेफिनेटली द एवरीवन विल अंडरस्टैंड कि हाउ आर का मतलब हो गया हाउ आर यू। नेक्स्ट थर्ड टर्म जो है हाउ आर यू। सो रादर देन राइटिंग, अगर मुझे कहीं पे शॉर्टेज ऑफ राइटिंग है तो मैं क्यों हाउ आर यू लिखूं, इसकी जगह मैं पे सिंपल हाउ आर लिख देता हूं तो मेरा काम चल जाता है। और जब व्हाट्सएप आया तो व्हाट्सएप ने उस लैंग्वेज को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस हाउ आर यू के एच आर यू में कन्वर्ट कर दिया। अब एच आर यू एग्जैक्टली किसी भी तरीके से पता नहीं चलता है कि ये स्पेलिंग में एच का मतलब हाउ है, आर का मतलब ए आर ई है, और यू का मतलब वाई ओ यू है। पर क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन आपको छोटा कम मैसेज में कम टेक्स्ट में आपको अपनी पूरी बात को कहना था, तो आपने शॉर्टकट लैंग्वेज यूज कर लिया, है ना। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पार्सिटी। दिस इज कॉल्ड एज अ स्पार्सिटी प्रोसेस। और इस स्पार्सिटी का मतलब होता है कि वी हैव अ इंफॉर्मेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन से हम एक सर्टेन मैट्रिक्स कन्वर्ट करते हैं जिसमें कि हम कुछ इंफॉर्मेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस। इंफॉर्मेशन कहीं भी लॉस नहीं होगी, कहीं भी किसी भी मोमेंट पर आपको नहीं लगेगा कि आपकी इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है। सिर्फ वो कंटेंट आप वहां से हटाएंगे जिस कंटेंट के बिहाफ पर आप वापस से इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल कर पाए। और आपका ब्रेन तो बड़े आराम से ये काम कर ही लेता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपने एच आर यू लिख दिया तो क्लियर हो गया कि हाउ आर यू। किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा तो उसका मतलब है वो हाउ आर यू। तो आपने कितने सारे लेटर्स को ऑप्टिमाइज कर दिया, और ऑप्टिमाइज करने के बाद उसको आपने एच आर यू में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज वन थिंग। सिमिलरली अब इसके जो प्रोसेस होते हैं, जो हमारी मशीन है, उस मशीन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, हम मशीन को सिखाना पड़ेगा कि अगर ऐसा कुछ पैटर्न है तो यू शुड बी एबल टू रीड आउट। अब हम एच आर यू को समझ लेते हैं हाउ आर यू, लेकिन अगर यही कोई ओल्ड एज पीपल होते जिन्होंने इस लैंग्वेज पे काम करना शुरू नहीं किया था, उनको नहीं पता था, तो वो पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच आर यू। जैसे बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप के मैसेजेस के वर्ड होते हैं जिनको कि हम लोग भी शायद एक्सपेक्ट नहीं करते। हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, नई वाले बच्चे हैं, वो उसका मतलब समझते हैं। जैसे कहीं कहीं लिख देते हैं डीएम टू मी। अब डीएम टू मी का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। अब मुझे भी बहुत बार टाइम लगा कई बार समझ में, इफ यू आर इंटरेस्टेड डीएम मी। अब डीएम मी का मतलब हो गया यानी कि मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो ऐसे जो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जिसको हम भी नहीं समझते, इसका मतलब हमारा लर्निंग कंपोनेंट उनके कंट्रास्ट में वीक है। हमारा लर्निंग कंपोनेंट उसके कॉन्ट्रास्ट में वीक है, और वीक होने की वजह से, क्योंकि हमारा लर्निंग कंपोनेंट वीक है, तो इसीलिए हमें वो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और जब हम वो चीज़ें सीख जाते हैं ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग, यही वो तरीका है जिसकी वजह से हम यहाँ पर सीख पाते हैं कि किस तरीके से हम मिसिंग कंपोनेंट इन्फॉर्मेशन से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को निकाल पाएँ। अब मैंने पूरा स्पार्सिटी का कंसेप्ट समझा दिया, व्हाट इज द स्पार्सिटी। स्पार्सिटी के बाद में मैंने आपको स्पार्सिटी लर्निंग के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिया उसमें यही चीज़ समझाई गई है कि अगर कहीं पे स्पार्सिटी लर्निंग की बात करेंगे तो कैसे। तो उस क्वेश्चन आंसर प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से उसको समझा देता हूँ कि व्हाट आई हैव रेड आउट, मैंने क्या पढ़ा था और वो उसका मतलब क्या था। तो जस्ट सी दिस। सो दिस इज वॉट एक्चुअली आई वॉज रीडिंग ऑन। मैं इसी को पढ़ा, इसी को आपको समझाया था इनिशियली कि स्पार्स कोडिंग इज रिप्रेजेंटेशन लर्निंग मेथड। अब आपने क्या किया, सिखाना पड़ेगा उसको कि डीएम का मतलब क्या है, डायरेक्ट मैसेज है। एच आर यू का मतलब क्या है, हाउ आर यू मतलब है ना। तो ऐसे बहुत सारे कम सून को भी कई लोग लिख देते हैं, कम सून को भी कई बार काफ़ी लोग लिख देते हैं कि कम सून हो गया। सो इन ऑल दिस सिचुएशन वी अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पर जो हम जो बात कर रहे हैं उस बात में ये है कि लर्निंग कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक और तरीका है कि अगर आप अपने ऑप्टिमाइजेशन को सेव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप स्पार्सिटी को इग्नोर नहीं कर सकते।
आप स्पार्सिटी पे काम करिए, बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, आपका स्टोरेज प्रोसेस प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं वो कम हो जाएंगे। कहीं से आपने इनपुट उठाया हुआ है तो उस इनपुट के पास में जो ओवरऑल मैट्रिसेस बनेंगे उनकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो यही यहाँ पर देखिए पहली लाइन में कितना आराम से इजीली लिखा हुआ है, is a representation learning method which aims at finding a sparse representation of input data। अब आपको sparse समझ में आ गया, उसका representation also known as sparse coding in the form of a linear combination of basic elements as well as those basic elements themselves। जो एलिमेंट्स उसके होते हैं उनके बारे में उनकी लीनियर कॉम्बिनेशंस क्रिएट की जाती है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तभी तो आप समझ पाएंगे। जैसे HRU में H, R और U, ये तीन जो लेटर्स हैं, H लेटर है, R लेटर है और U लेटर है, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर कहीं पे मैं इनकी इंटरकनेक्टिविटी को मैं डिस्टर्ब कर देता हूँ, H और U लिख देता हूँ, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि इसका मतलब है हाउ आर यू, ये कंफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एटम्स एंड दे कंपोज अ डिक्शनरी, और उनसे मिलके क्या बन जाती है, डिक्शनरी बन जाती है, जिससे कि हमारा आइटम होता है। अब मैथमेटिकली एटम्स हैं, डिक्शनरी आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑर्थोगोनल, ये इनकी कंडीशंस होती हैं, एंड दे मे एन ओवर कंप्लीट स्पैनिंग टेस्ट सेट होना चाहिए उनका। दिस प्रॉब्लम सेटअप ऑल्सो नोन एज अ डायमेंशनलिटी, वो आपस में डायमेंशनली कनेक्ट है, क्योंकि मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, टू बी हायर देन वन ऑफ द सिग्नल बीइंग ऑब्जर्व। The above two properties lead to having seemingly redundant atoms that allow multiple representation of the same signal, but also provide the improvement in the sparsity and flexibility of the representation. So this is what actually the sparsity। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास में है, इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग मैंने आज आपको दे दी, क्या है दैट यू कैन इजीली गो फॉर। सिमिलरली यूनिट नंबर 2 के अंदर, यूनिट नंबर 5 में फिर हम एक और क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, वो है व्हाट आर द ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव इन मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग में ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि दिस इज ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन की सारी ज़रूरत और नीड हमें यहाँ से ही समझ में आ जाती है कि हमारी क्या क्या नीड बनेगी और क्या क्या ज़रूरतें बनेगी। मशीन लर्निंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, अब इसमें हम बात करते हैं पूरे प्रोसेस के लिए, तो आप जरा इसको स्टडी करके देखें। फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द सेट ऑफ इनपुट to a target objective function that result in the minimum or maximum of the function। किसी भी चीज़ का ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है या तो आपने उस चीज़ को मिनिमाइज किया हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या मैक्सिमाइज किया, वही आपका ऑप्टिमम है। यानी कि आपने कॉन्वेक्स या कॉनकेव दोनों में से कोई एक चीज़ क्रिएट की हुई है, जिसकी वजह से आप उसको एक तो मैक्सिमम रीच चाहते हो उसकी, तब आपने कहा कि मैंने इसको ऑप्टिमाइज कर लिया, दैट इज व्हाट माय ऑप्टिमाइजेशन, या उसके सारे रिसोर्सेज के अंदर मिनिमाइजेशन फैक्टर पे आता है। It can be a challenging problem as a function may have tens, hundreds, thousands or even millions of inputs and the structure of the function is unknown। और ये भी नहीं पता कि आपका फंक्शन किसका, और इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका, जैसे मैं एग्जांपल बार बार वही पहले दिन से लेके लास्ट तक एक ही एग्जांपल बार बार लेके चलता हूँ। क्या एग्जांपल है कि आपने एक कार खरीदनी है और कार के लिए स्पेसिफिकली आपने सोचा है कलर। अब कलर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, लेकिन इस कलर के साथ में कितने इनपुट सेट ऑफ फंक्शंस इस पे काम कर रहे हैं, कंपनी के नाम, फीचर्स, फैमिली मेंबर्स की चॉइसेस, मतलब जितने मैं नाम यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा वो सारे के सारे ये हो जाएगा। आपका बजट अमाउंट, आपने कितना बजट आपने सोच रखा है, देन सनरूफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है ना, स्टीरियो सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, जैसे उन्होंने कहा, मे हैव टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ द इनपुट, और किसी एक चीज़ को ढूंढने के लिए जिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप चाह रहे हैं उस तक के लिए पहुँचने जिसमें कि स्ट्रक्चर आपका अननोन हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। सो फाइंड द सेट ऑफ इनपुट दैट रिजल्ट्स इन मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस है, हमें उन चीज़ों को ढूंढना होता है कि जो हम चाह रहे हैं। हम रेड कलर की कार लेने घर आना चाहते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में जितने भी हमारे इनपुट फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इनपुट फंक्शंस में जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होने चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम कार लेके आना चाह रहे हैं रेड कलर की, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, और रेड कलर की कार में हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्पेस होना चाहिए, तो स्पेस एक इनपुट फंक्शन हो गया। अब स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमाइजेशन ऑफ इनपुट फंक्शन। इसी तरीके से
फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ये दूसरा पार्ट हो गया। किसी ने देखा कि टायर की जो विड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो टायर की विड्थ मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम टायर की विड्थ हमें मिलनी चाहिए, ये एक आपका इनपुट सेट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इनपुट सेट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव। मशीन लर्निंग में ऑप्टिमाइजेशन की पर्सपेक्टिव क्या हो सकती है? तो एक पर्सपेक्टिव हो गया फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा हो गया फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन, अब आप उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना चाहते हो। तीसरा हो गया लर्निंग एज ऑप्टिमाइजेशन, आप उसको सिखाना चाहते हैं कोई चीज़, ये आपके पास में ऑप्शन आ गया। फिर आपके पास में लीनियर रिग्रेशन के ऑप्शन आ गए, लीनियर रिग्रेशन चाहते हैं आप चाहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन चाहते हैं, दिस इज अनदर। आप न्यूरल नेटवर्किंग क्रिएट करना चाहते हैं, दैट इज अनदर वन। सो इस तरीके से अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव उठा के देगा, जिससे आपको ये पता चलेगा ओके दीज आर द बेसिकली कॉजेज एंड दीज आर द पर्सपेक्टिव टू गो फॉर दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। आप इसके लिए इस वजह से आप जाना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मल्टीपल स्टेप्स इन एडिशन ऑफ द लर्निंग टू मॉडल इंक्लूडिंग। अब जा देखिए, जब हम इसके लिए जाते हैं, चूजिंग द हाइपर पैरामीटर ऑफ मॉडल, choosing the transforms to apply the data prior to the modeling, choosing the modeling pipeline to use the final model. Now that we know the optimization plays a central role in machine learning, तो ये अब यानी कि हाइपर पैरामीटर्स किसी भी चीज़ के, choosing the transform to apply the data prior to the modeling, choosing the modeling pipeline to use the final model, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, इसके लर्निंग के जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो सारे के सारे पर्सपेक्टिव है। तो ये इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर निकलता है। और दिस इज नॉट द लिमिटेड वन, ये लिमिटेड नहीं है, आप समझे कि केवल पर्सपेक्टिव है। ऑप्टिमाइजेशन के इतने पर्सपेक्टिव हैं दैट कैन नॉट बी रिटन इन सिंगल लाइन, लिखे नहीं जा सकते, है ना। तो बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन एट व्हाट टाइम व्हाट काइंड ऑफ अ थॉट वी आर थिंकिंग अपॉन। एक आध दो पर्सपेक्टिव अगर मैं आपसे कहूँ तो आप लोगों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं चल रहे होंगे, आप भी उन पर्सपेक्टिव पे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसा कोई पर्सपेक्टिव अगर आपके दिमाग में है तो आप भी बता सकते हैं। कोई किसी के दिमाग में पर्सपेक्टिव? इट्स ओके सर, इट्स ओके सर, फाइन, ठीक है। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन सही है आपका, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ देम यू कैन इजीली वर्क अपॉन। एक और पढ़ लेते हैं इसी सीरीज में, व्हाट आर द कॉमन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। यूनिट 5 में एक और क्वेश्चन है, छोटी यूनिट है, इसमें कौन कौन सी कॉमन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं। अब देखिए इनमें कौन कौन सी कॉमन ऑप्टिमाइजेशन की, इनको सबको हम लगभग पढ़ चुके हैं, है ना। इनको हम सबको लगभग पढ़ चुके हैं। तो कॉमन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक कौन सी, फंडामेंटल ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स आर टिपिकली, तो ग्रेडियंट डिसेंट हमने आपको पढ़ाया है, तो हमने बताया था ग्रेडियंट डिसेंट मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर ऑप्टिमाइजेशन मेथड। द आइडिया ऑफ दिस मेथड इज टू अपडेट द वेरिएबल iterative in the opposite direction of the gradient of the objective function. With every update, this method guides to the model to find the target and gradually converts to the optimal value of the objective function. देखिए कितना अच्छा है, मतलब इन 4 लाइन के अंदर, इन 4 लाइंस पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया गया। टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अचीव करना। ग्रेडियंट आपने निकाल लिया है, ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चीज का परिवर्तन, चेंज विद रेस्पेक्ट टू अनदर। अब वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप ग्रेडियंट निकालते हैं तो ग्रेडियंट के रेस्पेक्ट में आप क्या करते हो, उसको हर बार अपडेट करते हो, आप उसे हर बार अपडेट करते हैं। यू आर गोइंग टू चेंज, अपडेट कैसे करते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन, जिससे उस ग्रेडियंट की वैल्यू कम हो जाए, और जहाँ पर आके वो ग्रेडियंट अपने आप को मिनिमम वैल्यू पे लेके आ जाएगा, जहाँ पर
वहीं पर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन अचीव हो जाएगा। सीधी सी बात है, मतलब दिमाग में क्वेश्चन ग्रेडियंट डिसेंट आपके दिमाग में भी चलता है, ये तो मैथमेटिकली हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हमेशा आपके दिमाग में चलता रहता है। इसका एग्जाम्पल मैं लेता भी हूँ कि किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए जब चीज़ों के बारे में आप वहाँ पर जब चीज़ों के बारे में आप सोच रहे होते हैं और आपको कोई खास स्पेसिफिक चीज़ आपको लेके आनी है, कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको लेके आनी है, उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप अपने दिमाग में एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब जब आप उसको लेने चलते हैं तो बहुत सारे सेट ऑफ इनपुट्स के साथ में वो चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन तक जब उसे पहुंच रहे होते हैं, तो जो आप दिमाग के अंदर जो आपने फैक्टर क्रिएट किया हुआ है जो उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो रिस्पेक्टिव रिलेटिव इक्वेशन है। मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेरिएशन है। मतलब मैं कलर मुझे चाहिए ही चाहिए, तो कलर के रिस्पेक्ट में कॉस्ट, तो ये ग्रेडियंट है। कलर के रेस्पेक्ट में कार की कॉस्ट, ये मेरा एक ग्रेडियंट फंक्शन है। तो इस ग्रेडियंट फंक्शन की वैल्यू अगर हाई होगी मतलब रेट ज़्यादा है, मतलब वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। जब ये धीरे 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 ग्रेडियंट कम होता चला जाएगा, तब आप अपने ऑप्टिमल फंक्शन तक पहुंच जाएंगे। दिस इज व्हाट द टारगेट, ये आपका टारगेट है। समझ में आ गई बात? तो देखिए 4 लाइन के अंदर कितना बढ़िया तरीके से लिखा है। ग्रेडियंट डिसेंट मेथड, तो पहला मेथड है, इज अ मोस्ट पॉपुलर ऑप्टिमाइजेशन मेथड। अब आपको पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बड़ा समझ में भी आने लगेगा कि प्रोसेस में क्या है। द आइडिया ऑफ दिस मेथड इज टू अपडेट द वेरिएबल इटरेटिवली इन द अपोजिट डायरेक्शन, उसको कम करते जाना है। जहाँ पे रेट ऑफ चेंज यानी कि दिमाग का सोचने का रेट जो है, जब जाके वो चेंज हो गया, व्हेन इट हैज बिकम चेंज्ड कंप्लीटली, जब वो चेंज ही हो गया, बदल ही गया, इन दैट सिचुएशन, जब वो बदल गया उस सिचुएशन में जाके, तभी तो आप कहेंगे कि हाँ अब मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल क्रिएट हो गया। और जहाँ सेटिस्फेक्शन आ गया वहीं पर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन फुलफिल हो गया। इतनी सीधी सी बात है ये। तो ये एक ग्रेडियंट डिसेंट हो गया, ये भी इसी के टाइप में ही क्वेश्चन आपका आता है, ये आप आराम से देख सकते हैं, ये आपके पास अवेलेबल हो गया। सेकेंड मेथड था आपका स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट मेथड था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट वाज प्रपोज्ड टू एड्रेस द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन ईच इटरेशन फॉर लार्ज स्केल डेटा। अब जब आपके पास में बहुत लार्ज स्केल का डेटा होता है तो वहाँ पर उनके अंदर जो कंप्यूटेशनल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उन इटरेशंस को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। टेकिंग द वैल्यू एंड एडजस्टिंग दैम इटरेटिवली बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉस फंक्शन। है वही ग्रेडियंट डिसेंट, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि जब आप नंबर ऑफ इटरेशंस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं तो उसमें जो अपडेशन की वैल्यू उसको चेंज करने का ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो दैट इज़ द वन थिंग। थर्ड है एडाप्टिव लर्निंग रेट मेथड। Adaptive learning rate method में क्या था? Learning rate is one of the key hyperparameter that undergoes optimization. Learning rate decides whether the model will skip certain portion of data. If the learning rate is high, then the model might miss on subtler aspect of the data. If it is a low, then it is desirable for the real world application. Learning rate has a great influence on SGD, यानी कि आप जो algorithm use कर रहे हैं ये वाली, उसमें काम करता है। स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट मेथड में काम करता है। सेटिंग द राइट वैल्यूज ऑफ द लर्निंग रेट कैन चैलेंजिंग, एडाप्टिव मेथड वर प्रपोज्ड टू दिस ऑटोमेटिकली। अब इसमें वो ये क्या कहते हैं, इसमें ये कहते हैं कि ये सारा का सारा देखिए इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं, इस चीज़ पर भी निर्भर करता है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की बात करते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी इनपुट पर और एल्गोरिथम्स पे तो काम करती है, लेकिन जो एल्गोरिथम आप अप्लाई कर रहे हो, जो एल्गोरिथम आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में लेके चले जा रहे हैं, उन एल्गोरिथम्स के लर्निंग रेट को भी तो डिफाइन कीजिए। तो ये कहते हैं कि अगर किसी चीज़ का लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा हाई बहुत फास्ट है, जल्दी जल्दी कोई चीज़, इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि जो आप उसको इनपुट डेटा फीड दे रहे हो वो इनपुट डेटा फीड स्किप हो सकता है। लेकिन अगर आप ये मान के चलते हो कि लर्निंग रेट जो है, जो लर्निंग रेट है वो स्लो है, इसका मतलब वो धीरे 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 उन सारी चीज़ों को सीखेगा जो कि रिक्वायर्ड होगी। दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो सेटिंग द राइट वैल्यू ऑफ द लर्निंग रेट कैन बी चैलेंजिंग। तो अब लर्निंग रेट कितना होना चाहिए ये भी अपने आप में डिसाइड। तो होता क्या है कि कुछ मशीनें और कुछ डिवाइसेस ऐसी बनाई जाती हैं, ध्यान से समझिएगा,
कुछ ऐसी बनाई जाती हैं जो अडॉप्टिव होती हैं। अडॉप्टिव का मतलब जैसे नेचर में आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना खुद का जो प्रिंसिपल है, अपनी खुद की जो वैल्यूज़ हैं, अपने खुद के जो थॉट प्रोसेसेस हैं, वो एज इट इज़ रखते हैं जैसे उनकी लाइफ में हो, चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो, काम उन्हें वही करना है। लेकिन कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा ऐसे होते हैं जो जगह और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा जो सोचने का तरीका था हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स का, अगर हम अपने पेरेंट्स के तरीके को, उस लर्निंग रेट को जो हमने सीखा था, उसी को हम इम्प्लीमेंट करें किस पर, अपने बच्चों पर करें, तो अब वो शायद आज के सिनेरियो में काम नहीं करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारा जो स्टडी कंपोनेंट था वो सारा का सारा बुक बेस्ड था। मतलब पढ़ाई का मतलब है कि आप किताबों के साथ बैठे हो। अब ये हमारे पेरेंट्स का लर्निंग रेट था कि अगर हम किताबों के साथ नहीं बैठे हैं तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग टाइम हम पढ़ाई नहीं कर रहे। पक्का ये उनका लर्निंग रेट था, उनका ये लर्निंग कंसेप्ट था। दे हैव डेवलप्ड इट। ये सीधी सी बात है, इसको बड़ा अच्छे से समझिएगा, इट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग। पर अब आज के ज़माने में क्योंकि हम ही लोगों के ऊपर वो प्रोसेस इंप्लीमेंट किया गया था, लेकिन अब जब हम आ गए हैं यहाँ पर, और अगर हम उसी लर्निंग रेट को लिए रहेंगे जो हमने सीखा, जो हमारे ऊपर इंप्लीमेंट किया गया, और उसी के हिसाब से अगर हम बच्चों की तरफ अपने देखते हैं, अपनी जनरेशन की तरफ देखते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन आई हो, और उनको उनसे कहते हैं कि अगर आप किताबों के साथ नहीं बैठे हो तो आप पढ़ नहीं रहे हो, तो दैट्स नॉट ट्रू। अब वो सिस्टम पे कंप्यूटर पे बैठा है तो हो सकता है पढ़ रहा हो, आपके घर में स्मार्ट टीवी लगा हुआ है तो हो सकता है वो यूट्यूब पे बैठ के कुछ कॉस्मोस एनर्जी के बारे में, या नेट जियो पर या डिस्कवरी चैनल पर बैठ के बच्चा कोई साइंस का प्रोग्राम देख रहा हो। सो थिंग इज व्हाट, अल्टीमेटली व्हाट इज द थिंग, थिंग इज व्हाट कि दिस इज कॉल्ड एज अडॉप्टिवली। अब हमने अडेप्ट कर लिया कि हाँ देख लिया, समझ लिया एनवायरनमेंट को, और उसके अकॉर्डिंग, सिमिलरिटी अकॉर्डिंग टू इट, हमने क्या किया, उसको अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करके अपना लर्निंग रेट चेंज कर दिया। तो ये होता है एक। तो हम जिस मशीन पर काम कर रहे हैं उस मशीन का भी अपना खुद का एक लर्निंग रेट होता है। गॉट इट? तो दिस इज ऑल्सो द वन पॉइंट, ये भी एक अपने आप में एक अच्छा पॉइंट है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आपके सिलेबस में नहीं है पर लेकिन दिस इज ऑल्सो वन मेथड, कॉन्जुगेट ग्रेडियंट मेथड। तो conjugate gradient method approach is used to solving large scale linear systems of equations and non-linear optimization problem। तो जहाँ पर आपकी ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स नॉन लीनियर है, मतलब पता ही नहीं है, वेरिएशन इतना ज़्यादा हाई है, स्क्वायर की फॉर्म में, क्यूब रूट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जाके एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के रेस्पेक्ट में बदल रहा है, तो इस टाइप की सिचुएशन में हम ये कॉन्जुगेट ग्रेडियंट मेथड यूज़ करते हैं। इसी तरीके से डेरिवेटिव फ्री ऑप्टिमाइजेशन मेथड भी आता है, मतलब जिसमें डेरिवेटिव की ज़रूरत ही ना पड़े। उसमें क्या करते हैं, फॉर सम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इट कैन ऑलवेज बी अप्रोच्ड थ्रू अ ग्रेडियंट बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करता हो। ठीक है, वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो दिस इज वेयर द डेरिवेटिव फ्री ऑप्टिमाइजेशन कम्स इनटू द पिक्चर। It uses a heuristic algorithm that chooses method and that have already worked well rather than the derived solutions systematically. Classically simulated, annealing, arithmetic, genetic algorithm, particle swarm optimization and a few such examples. तो इनमें डेरिवेटिव क्लियर होती है। फिर होते हैं जीरोथ ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन, ये भी अपने आप में एक ऑप्टिमाइजेशन की ही टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है। Was introduced recently to address the shortcomings of the derivatives. Free optimization derivative, free optimization method find it difficult to scale a large size problem and suffer from the lack of a convergence of the weight। तो जीरोथ ऑर्डर प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाता है, इसके अपने खुद के एडवांटेजेस हैं। मेटा लर्निंग है, दिस इज अनदर वे। मेटा ऑप्टिमाइजर इज पॉपुलर विद इन द मेटा लर्निंग डिजाइन। The purpose of the meta learning is to achieve fast learning, which in turn makes gradient descent more accurate in the optimization. The optimization process itself can be regarded as a learning problem to learn the prediction gradient rather than to determine the gradient descent algorithm। अब देखिए कितना अच्छा लाइन है, अगर आप इसको केयरफुली इस लाइन को पढ़ेंगे so you will understand the process। The optimization process itself can be regarded, जो खुद का process है, as a learning problem to learn the prediction gradient
rather than to determine the gradient descent algorithm. ऐसा ना करें ग्रेडियंट के लिए फिर इसके अपोजिट कोफिशिएंट निकालें, इसकी जगह जो प्रोसेस आपने अप्लाई किया वही काम करें. ड्यू टू द सिमिलरली बिटवीन द ग्रेडियंट बैक प्रोपगेशन यूज. तो LSTM अपने आप में इसका मॉडल होता है जिसको अपन यूज़ करते हैं. तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, ये आपको केयरफुली यू हैव टू रीड इट ऑल. आपको इनको केयरफुली पढ़ना है. पढ़ने के बाद में आपको डाउट्स आएंगे. यू कैन आस्क योर डाउट्स टू मी. आप पूछ सकते हैं, मेरे से बातें कर सकते हैं. कोई कहीं लगता है आपको तो हम उसको पॉइंट को पिकअप करेंगे एंड वी कैन एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम. तो इस तरीके से अब आपके पास लगभग मैंने सभी यूनिट के नोट्स आपके पास पहुंचा दिए हैं. 5 हो गया है, 3 और 4 का भी थोड़ी देर में आपके पास में पहुंच जाएगा. तो हर यूनिट का एक क्वेश्चन है और उसका एक सोल्यूशन है. आप उस क्वेश्चन और सोल्यूशन को पढ़ना आप शुरू कर दीजिए. जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे यू विल हैव मोर इम्पैक्ट ऑन इट. उसमें कुछ आपको पूछना होगा तो आप मेरे को वही पर्टिकुलर यूनिट बता दीजिएगा. मैं उसी यूनिट के क्वेश्चंस को उठा लूँगा और आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूँगा, है ना. दिस इज़ वॉट द मोस्ट एक्सपेक्टेड पार्ट. तो ये हम कर सकते हैं. सो वेल, एनीथिंग एल्स? सो आई सपोज दिस इज डन फ्रॉम माई साइड. जी, एक्सटर्नल एग्जाम पॉइंट सिचुएशन, ये ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, अनवरत चलता रहता है और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है कि ऑप्टिमाइजेशन वहाँ जाके अचीव हो जाए. ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आपने बाउंड्रीज सेट करी है, और हर मशीन के लिए अपना खुद का ऑब्जेक्टिव फंक्शन अलग होगा. आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन अलग होगा और 100% आपके घर में आपकी मैडम है उनका अलग होगा, किसी और का और अलग होगा. सबके ऑब्जेक्टिव तो फंक्शन. जैसे हाँ जी. जैसे छुट्टी के दिन क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है आराम, और वाइफ का होता है काम. ये सारे काम इनको दे दो ताकि सारे काम कर लें. हमारा होता है कि हम आराम से ज्यादा आराम कर पाएं, किस तरीके से उसको हाँ ऑप्टिमाइज हाँ, कर पाएं. उनकी एक्सपेक्टेशन होती है उनको ज़्यादा सामान भी मंगवाना होता है. वॉशिंग मशीन लगा दी है तो सुखा भी दो कपड़े, समथिंग लाइक दैट, है ना. ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है. कॉन्वेक्स के अंदर आपके स्मूथ एंड नॉन स्मूथ के प्रोसेसेस आपको दिए गए. यही सारे पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिए गए हैं. तो अब आपको जो मैंने नोट्स शेयर किए हुए हैं, एक एक बार अपन सारे नोट्स को पढ़ के देखिए. पढ़ने के बाद आपको मुझे लगता है काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. इवन दैट यू फील हम उसी यूनिट का जो हमने सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया है वही सॉल्यूशन हम ले लेंगे और आप वापस डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे.